So, welcome to the last session of the series. First three sessions were about the fundamentals of freelancing. The second one was on Fiverr, and third one was about Upwork. Currently, what we've covered is the freelancing fundamentals, how you can get around it, how to treat freelancing, what are the rules that you have to follow in freelancing, how do you create gigs on Fiverr, how do you uh, research keywords for better, how do you research niche, how do you write proposals on Upwork? How do you optimize your Upwork profile, create portfolios, create catalogs? All that has been covered. If you've missed any of that, you can see that on YouTube. I have shared the links in groups already, and I will share the links again afterwards. So the last session is going to be about personal branding and portfolio. This is an important one when it comes to freelancing, partly because कोई भी बंदा freelancing start कर रहा है तो they do need some sort of a proof of work or portfolio. So when I started on Fiverr, तो इतना कुछ खास showcase करने के लिए नहीं होता आपके पास. You have like 3, 4, 5 pieces of work, चाहे वो graphics में है, चाहे वो websites के अंदर है. Websites में तो खैर आप लोग courses ले लेते हो and you never really make websites, and then you cry about not getting clients because you never create any projects to showcase. So if you do create projects to showcase, in that case, you can showcase that to client. But how do you showcase that? बहुत सारी चीजें होती हैं जो sometimes live नहीं होती हैं. Sometimes आप सिर्फ just GitHub होता है आपके पास उसका, या फिर आप अपनी जो टेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए सेपरेट डोमेन्स तो बाय नहीं करते, या मोस्टली उनको फ्री होस्टिंग्स के ऊपर भी होस्ट नहीं करते. सो इवेंचुअली what I have seen in freelancing that I want you to start early. मैंने बहुत late start की थी ये चीज, but it has helped me a lot. So when I did not have enough work to show, मैंने अपनी एक website बना ली. That was my own personal website, which is called a portfolio website, right? And that is how I started looking more professional in front of clients. So today's agenda of the session is why personal branding is important, why building a portfolio website is important, how to build a portfolio website, और उसको layout कैसे करना है. Your website should really look professional. Clients को feel आनी चाहिए कि this is the type of guy जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े projects करता है, बहुत ज़्यादा बड़ी. So you know the kind of professional feel जो हमें एक website से चाहिए. We don't want your website to look third grade. ठीक है? We want it to look like the best. मतलब if you visit any of the profiles, तो it should look like इस बंदे ने इंडस्ट्री में कुछ काम किया है with like big names or something like that. इस तरह का आउटलुक होना चाहिए उस वेबसाइट का. उससे फायदा ये होता है कि clients are really impressed by your work. और the funny thing about portfolio website is usually काम आपका देखते भी नहीं है clients. They don't see कि आपने क्या projects किए हैं. They don't see खोल के कि किस project में क्या हो रहा है, इस company के अंदर इसने कैसा काम किया है. Most of the times they're just impressed by the website itself कि वो शायद कभी खोल के ना देखें. And that is a way for you to cover your lack of work. जब आपके पास experience कम है तो portfolio website is the best way to go around. ठीक है? And then at the end जो कि main चीज़ है वो है we will assess everyone's gigs. जितने जितने लोगों ने बनाई है, जितनी हम कर सके assess, वो हम assess कर लेंगे and see what we can, कि लोगों ने क्या किया, and then you can just learn from each other's experiences. Okay, chat is clear, hopefully. Let's move forward. So let me give you an example of my portfolio website. I created mine in Wix. You know, WordPress hai, Wix hai, e-commerce, whatever, BigCommerce hai, Shopify hai, all these editors that help you create a website and host that. And I created mine on Wix. That was about 3 years ago. I was not in university when I created this website. मुझे तो Wix ही use करना आता था. And that's what I did. So this is what my portfolio website is. ठीक है, it's like 3 years old. तो I have not updated any of this. इसके बाद मैंने कोई ना content writer के बाद कोई 3-4 careers change कर लिए हैं, but it's just outdated थोड़ा सा, but it does the job for me. And as everyone else, I procrastinate as well. But it has a basic overview. इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ mistakes क्या हैं, जो कि अगर, क्योंकि अब मुझे experience ज़्यादा है और मुझे पता है कि what would work best, तो अगर मैंने आज इसको update करना हो तो मैं इसको कैसे करूँगा, and that would give you a perspective. But these are all the ones, ये सारे हैं testimonials जो कि मेरे actual clients के हैं. इनसे मैंने permission भी ली हुई है ये सब कुछ post करने की.
So that's totally your personal preference कि आप client से permission लेते हो या नहीं उनकी work post करने की, but generally it's um, recommended कि आप permission ले लो because you do the work from them, तो it's their work, not your work. So इन लोगों ने तो खैर मुझे publicly दी थी, that's why I put it there. If you go to the resume section, this is ये एक वेबसाइट, ये टेम्पलेट जो है ना जो आप देख रहे हो ये सारी, ये मैंने उठाई विक्स से थी. तो ऑल दिस वाज एक्चुअली प्री क्रिएटेड, ये सारी की सारी बस मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ चेंज किया है. इसको क्लोन करके नीचे पेस्ट कर दिया, इसको क्लोन करके नीचे पेस्ट कर दिया, ये सारा कुछ चेंज कर दिया, एंड दैट्स हाउ आई क्विकली मेड दिस. ठीक है. बट प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आई हैव लिस्ट ऑफ होल ऑल माई प्रोजेक्ट्स. ठीक है. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दी, एंड देन आई हैव हर कंपनी, उसका नाम, मेरी डेजिग्नेशन क्या थी और उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, एंड देन द लिंक टू द कंपनीज वेबसाइट जहाँ पे मैंने जो भी काम किया हुआ है. सो दिस इज अ वे फॉर मी टू शोकेस माई प्रोजेक्ट्स. अब द पॉइंट इज कि व्हेन आई शो द क्लाइंट दिस वेबसाइट, तो होता ही है कि वेरी रेयरली वो लोग इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. दे आर जस्ट इम्प्रेस्ड बाय द वेबसाइट इटसेल्फ. ठीक है. आई यूज्ड टू हैव अ डोमेन फॉर इट, एक्सपायर हो गई है. सो अब ये बहुत गंदा सा एक यूआरएल आता है इसका, .wixsite.com/portfolio. बट दैट्स फाइन, as long as you are showcasing your work on a website in a professional way, that's going to work for you. ठीक है. अब सेम वे है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने फलानी कैटेगरी में काम किया, फलानी कैटेगरी में काम किया, तो उसके लिए ना सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैंने उनकी उनकी ही कैटेगरीज बना दी. अब हर चीज़ का एक पेज बनाया हुआ है कि जिस जिस जगह पे मैंने जिस जिस कैटेगरी में काम किया, ऑल्दो ये भी बहुत आउटडेटेड है, इसके नीचे भी कोई 7 8 और कैटेगरीज ऐड हो जानी चाहिए, बट दिस वाज लाइक रियली ओल्ड. तो दिस लिंक्स बैक टू अ गूगल ड्राइव. उस गूगल ड्राइव के अंदर मैंने सारा कुछ जो है ना फोल्डर्स बना के सेव किया हुआ है. सो इफ यू सी, तो इफ यू डू नो वेब डेवलपमेंट अच्छी, यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट. जो फ्रंट एंड वाले हैं दे कैन क्रिएट वन एज वेल, क्योंकि इसमें कोई बैक एंड तो है नहीं, इट्स जस्ट अ शोकेस. बट आई हैव अनदर इंटरेस्टिंग वे फॉर दिस एज वेल, which is called, let's, आप कैनवा पे जाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट का ना सर्च करो, यहाँ पे आपको ना एक बनी बनाई कैनवा पे टेम्पलेट मिल जाएगी. राइट, सो दीज आर ऑल पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट्स. आई फाइंड देम गुड क्योंकि मुझ मेरी वाली अब मैं आपको बताता हूँ मेरे वाले के अंदर मसला क्या है. कम हेयर, और जो एक वेबसाइट होती है ना, दैट should include sort of a call to action, that should include a good description of yours, एक अच्छी लाइन जो आपके लिए समराइज करती है आपकी सर्विसेज को, आपकी आपके काम को. दिस इज अ होम पेज. आई फील लाइक ये जो जितनी भी ऊपर ये जगह है, ये सारी वेस्टेड है. दिस शुड बी रिमूव्ड. ठीक है. इट शुड बी वेरी क्लियर. हेलो, हेयर्स व्हाट आई डू, ये सारा कुछ तो टेम्पलेट में पड़ा था ना जो मैंने उठाई थी, और मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया. बट इफ आई हैव वांटेड टू, सबसे पहले यहाँ पे एक हीरो बैनर आएगा, विच इज लाइक द होल बैनर जो वेबसाइट पे आता है. दिस इज वेयर आई हैव माई पिक्चर और समथिंग, और इसकी बजाय ना एक बेहतर लाइन. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से आई एम अ B2B एंड सास कॉपीराइटर एंड कंटेंट मार्केटर. ठीक है. या फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे कंटेंट मार्केटिंग या कॉपीराइटिंग के अलग से एक पेज बनाना है और कंटेंट राइटिंग का एक अलग से पेज बनाना है, क्योंकि ये दोनों सर्विसेज काफी डिफरेंट है, मेरे काम दोनों सर्विसेज के अंदर बहुत डिफरेंट है, तो आई कैन मेक सेपरेट पेजेस. उस पेज का लिंक भेज सकता हूँ मैं उस स्पेसिफिक जॉब पोस्ट के लिए या उस स्पेसिफिक क्लाइंट को जो वो चाह रहा है. राइट. एंड दैट इज द काइंड ऑफ हीरो इमेज. उसके नीचे मुझे कुछ क्लाइंट कंपनीज मेंशन करनी है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है. उसके नीचे मुझे फिर से अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है कि मैं ब्लॉग्स राइट करता हूँ और ब्लॉग्स के अंदर मैं क्या राइट करता हूँ. तो सॉर्ट ऑफ लाइक वो सेक्शंस बने आते हैं ना नीचे आपकी बुलेट्स के साथ, व्हाट यू डू, थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए क्लाइंट्स को. अब द पॉइंट इज कि इस पैराग्राफ के अलावा इस पूरे पेज के अंदर कहीं पे ये शो नहीं होता कि मैं क्या करता हूँ. एंड आई थिंक दिस पैराग्राफ इज अ रियली बैड way to do this. So I should list all my services one by one, and I should have all the bullet points. I should have a clear call to action. या कोई यूजर स्टोरीज अगर मुझे मिलती हैं या मैं खुद से फैब्रिकेट करता हूँ यूजर स्टोरीज, खुद से बनाता हूँ, तो आई शुड बी एबल टू लिस्ट देम. यानी क्लाइंट को एक फील आनी चाहिए दैट ही इज लुकिंग एट अ प्रोफेशनल वेबसाइट जिसके ऊपर प्रॉपर सेल्स पिच है. इस वेबसाइट के ऊपर सेल्स पिच नहीं है. सो विल एनालाइज समथिंग इन हेयर एंड सी इफ सम ऑफ these have a sales pitch. Okay, let's just take this. I'm not sure how many pages this has. चलो इसी को ले लेते हैं फिर. Let's customize this. So if you
कैन क्रिएट इट इन विक्स, अच्छी बात है. इफ यू कैन कोड इट योरसेल्फ, बहुत अच्छी बात है. इफ यू डोंट नो एनीथिंग, आप डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो दैट्स ग्रेट. आप कैनवा में जाकर अपनी वेबसाइट बना लो. कैनवा के अंदर वेबसाइट्स भी बन जाती हैं. इफ यू डिड नॉट नो दैट, दैट्स फाइन. देखो, दिस इज अ बेसिक टेम्पलेट, राइट? अब ये पूरा पेज नहीं है. इसके नीचे वाला सेक्शन मिसिंग है, उसके नीचे वाला सेक्शन मिसिंग है. सो हाउ डू आई क्रिएट दैट? लेट मी शो यू हाउ. सो अज्यूम दैट योर, इसका ना फॉन्ट स्टाइल कर देते हैं छोटा. ठीक. दिस इज द काइंड ऑफ, दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग. छोटी छोटी लाइन्स दैट रियली powerfully reflect what you do. And this is sort of a line जो कि सबको याद है, क्योंकि this is comes from your friendly neighborhood Spider-Man. And you are kind of using a similar sentence, तो लोगों के लिए थोड़ी रेजोनेंस डेवलप हो जाती है. एंड इस तरह की एक इनफॉर्मल सी लाइन लिख के ना, आई कुड शो टू क्लाइंट दैट आई एम अ ह्यूमन एज वेल. और थोड़ा सा ना पर्सनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है. सो दिस इज व्हाट आई से, कि थोड़ी सी ना सटलिटी होती है साइट्स के अंदर, दैट यू वांट, लाइक दिस इज कॉल्ड डिजाइन प्रिंसिपल्स. ठीक है? मोस्ट ऑफ यू आर डेवलपर्स, मोस्ट ऑफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर्स, बट क्रिएटिविटी इज समथिंग जो कि सारे प्रोसेस को, सारी इंडस्ट्रीज को ड्राइव करनी चाहिए. एंड बीइंग अ डेवलपर, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्रंट एंड की डिजाइन क्रिएटिविटी, या एज अ डिजाइनर यू शुड हैव सम क्रिएटिविटी. टूल्स को यूज करना बड़ी बात नहीं है, क्रिएटिविटी को यूज करके अच्छे डिजाइन बनाना इज द थिंग. एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू क्रिएट वेबसाइट्स. थोड़ा सा गो टू चैट जीपीटी में भी, ठीक है? इफ यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसे डिस्कस करो. व्हाट योर वेबसाइट इज गोइंग टू बी अबाउट, उसे डिस्कस करो कि आई वांटेड टू बी अ रियली फन विटी सी, जिसके अंदर जोक्स हों. दैट काइंड ऑफ कॉपी चाहिए मुझे. ये सेक्शंस डालना चाह रहा हूँ मैं. सो ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ सजेशंस. यूज दैट. सो लाइक दिस इज सपोज टू बी माई हीरो बैनर. ठीक है? अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इन दिस पेज. अब यहाँ से मैं अपना इसको रिमूव कर देता हूँ. ठीक है? अज्यूम के मुझे ये भी रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, ये भी. और मुझे एक नीचे वाला सेक्शन डिजाइन करना है. अब मैं इसके अंदर कोई और लाइन डाल देता हूँ. इन सब को हम थोड़ा ग्रुप कर लेते हैं. ठीक है? इसको थोड़ा ऊपर प्लेस कर देते हैं. हेयर्स व्हाट आई डू. और इस तरह से मतलब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. एंड देन हमारे पास दो सेक्शंस बन गए एक ही पेज के. सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड गो टू शेयर, वेबसाइट पे जाऊंगा, एंड आई वुड पब्लिश इट. The design is now converted into a website. It has its own link. I am not sure how I can. अच्छा हाँ, ये है ना, सब कुछ छोड़ो. Canva, my canva.site/portfolio. इतना सा लिंक बहुत है. URL is not available. ओहो. अच्छा, आई थिंक ये पब्लिक URL है. Abdullah's portfolio. I think this would be available. Yes, it is available. यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो. यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हो. यहाँ पे आएगा Abdullah's laboratory. एंड देन यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन राइट कर दो. जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, लाइक वट एवर, नेटफ्लिक्स, तो ये जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली डेवलपर्स को पता है, बट दिस इज अ मेटा डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको अपनी अपनी सर्विस एक्सप्लेन करनी है या अपने बारे में एक्सप्लेन करना है. सॉर्ट ऑफ लाइक एसईओ पर्पसेस के लिए. And that's how your website is made. You can do the same thing in Wix. You can do the same thing, but you need to have your showcase your works. जो developers हैं, they could maybe like include demos अपनी websites के. different tools से demos बना लो, वो integrate कर दो, embed कर दो. अपनी YouTube वीडियो बना लो, अपनी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग बना लो. ठीक है? अब रिकॉर्डिंग खुद नहीं बनानी, कैमरा में नहीं आना, तो white board animations are your friend. There are a lot of ways to do this. ये जो हाथ से लिखते नहीं आते, ये वाला, आई थिंक इसका सबसे, वीडियो स्क्राइब इज अ रियली ग्रेट और फ्री टूल है ये. हाँ, इससे वाइट बोर्ड एनिमेशन बन जाती हैं. तो इसको डाउनलोड कर लो, इसे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बना लो, उसको एम्बेड कर दो वहाँ पे, मेक इट प्रोफेशनल. क्या बना हमारी वेबसाइट का? पब्लिश कर तो दिया. अच्छा हाँ, कॉपी कर लिया था हमने लिंक. ये है लिंक.
See, and now we have a website यहाँ पे with these sections. So just keep adding sections. अगर आपको इसमें लिंक्स ऐड करने हैं ना, एडिट करो डिजाइन को दोबारा से। अगर आपने यहाँ पे अपना सोशल मीडिया का लिंक डालना है, वट एवर यू वॉन्ट, इसको जाओ यहाँ पे, वट एवर दिस इज लिंक वाला ऑप्शन होगा, कंट्रोल के, यहाँ पे लिंक पेस्ट करो, ये हाइपर लिंक बन जाएगा। आपको इसमें एनिमेशन ऐड करनी है, कोई टेलविंड की लाइब्रेरी, कोई बूटस्ट्रैप कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये करो, ठीक है। इस पे मैंने एनिमेशन डाल दिया, मैं इस पे भी डाल देता हूँ। इस पे हम ये डाल देते हैं, और इसके ऊपर जो है ना हम ये डाल देते हैं, और इसके ऊपर हम ये डाल देता हूँ। अब मैं इसको रिपब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखना, ये सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, एनिमेशंस वगैरह। सो इट्स अ वेरी इजी एंड एंगेजिंग वे, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस बिकॉज आई वांट यू टू डू दिस। सी, ऑल द ऑल द एनिमेशंस आर ऑन आवर वेबसाइट नाउ। यहाँ पे अगर आपको चाहिए ना, तो स्पाइडरमैन की एक एनिमेशन आएगी, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना, स्पाइडरमैन उड़ के आएगा, यहाँ पे वेब फेंकेगा। दैट इज टोटली योर थिंग। बट इसका सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? होस्टिंग बाय ना करो। GoDaddy पे जाके अगर आप डोमेन बाय करते हो या नेम चिप पे बाय करते हो ना डोमेन, 700 रुपए की, 1000 रुपए की डोमेन आएगी 1 साल के लिए, पूरे 1 साल चलेगी। अपने नाम की डोमेन बाय करनी है। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, डोमेन मास्किंग। इस पे आप 15 मिनट लगाना, 20 मिनट लगाना, एंड दिस इज अ वे टू हाइड द यूआरएल। सो अज्यूम कि ये वाली वेबसाइट है, एंड आई डोंट थिंक कि ये एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल यूआरएल है मेरे लिए। आई डोंट लाइक दिस। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जब मैं इस यूआरएल के लिए डोमेन मास्क करूंगा ना, तो जो मैंने नई डोमेन बाय किया ना, sabdullah.com, वो उसको चेंज कर देगा। सो जब भी ये वेबसाइट खोला करेगी, ऊपर ये लिखाया करेगा। ऑल्दो बैकएंड पे वही पुराना लिंक ही चल रहा है, बट वो मास्क करके ना इसको थोड़ा प्रोफेशनल बना देगा और ये लिखाया करेगा। तो दैट्स अ जुगाड़ जिसे आप कर सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट एजेंडा, व्हाई पोर्टफोलियो वेबसाइट वाज इंपॉर्टेंट। अब आप इस पे अपने ग्राफिक्स के वर्क शो करो, अपनी इस पे राइटिंग शो करो, ब्लॉग्स के लिंक्स डालो, क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल्स डालो। सब कुछ करने के लिए इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखो क्या मेरा डिज़ाइन, एडिट करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, डिज़ाइन में जाके ना टेस्टिमोनियल सर्च करो। हाँ, अगर आपको यही करना है ना, तो कैनवा का आई थिंक प्रो वर्जन 500 रुपये का आता है 1 महीने के लिए, तो उसको यूज़ कर लेना, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर देना। अगर प्रो नहीं करना तो फ्री में भी मोस्टली काम हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं क्या, टेस्टिमोनियल्स जैसे कि है ना, ऐड एज ए न्यू पेज। अब मुझे थोड़ी बहुत इसके कलर्स उठा के यहाँ ला के लाने पड़ेंगे, एंड देन यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के नाम चेंज करके इसको, ये ब्लू बैकग्राउंड को रिप्लेस कर देता हूँ विथ माई साइट, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता है, एंड लाइक दैट इज हाउ यू क्रिएट। अपने पोर्टफोलियोज ऐड करो, इट्स ऑल देयर, ऑल द टेम्पलेट्स आर देयर। एंड देन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्स कन्वर्जन ऑफ पोर्टफोलियो। डोंट मेक इट लुक बोरिंग। गूगल लाइक कॉपी राइटर पोर्टफोलियो। मैं कॉपी राइटर हूँ, तो मुझे ये देखो, पोर्टफोलियो के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारी। मुझे इन सारी एग्जाम्पल्स को देखना है, इनके अंदर से सेक्शंस की इंस्पिरेशन लेनी है, एंड देन दैट्स हाउ आई वुड क्रिएट दैट। फ्रीलांसिंग से ये सेशन डेवलपमेंट पे चला गया, बट खैर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आई जस्ट एक्सप्लोर ऑल देयर वेबसाइट्स, see what they're doing, ठीक है। I really like this layout, so I'll check it out. Same thing do with your niche as well. What if you want link to button like a different page on different button? Yes, Mariam, really good question. पता है आप क्या करो, ये वेबसाइट है ना, ये हो गया आपका एक पेज। अब आपने एक और कैनवा का प्रोजेक्ट क्रिएट करो, सेप डिफरेंट, लाइक इसमें नहीं, इसको क्लोन कर लो और एक सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करो। उस प्रोजेक्ट का अपना लिंक बनेगा, जिस तरह इसका एक लिंक बना हुआ है ना, वेयर वाज द लिंक, हाँ जिस तरह ये है ना, इसका अपना लिंक है। उसको आप लिख दो अब्दुल्ला अबाउट, ठीक है। एक अब्दुल्ला पोर्टफोलियो हो गया, एक अब्दुल्ला अबाउट हो गया, एक अब्दुल्ला होम हो गया। तो इस तरह से 3 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट कर ली। अब उसकी वेबसाइट का लिंक पकड़ो, और आके ऊपर ये जो आपने ये क्रिएट किया था ना बटन्स, इसके अंदर पेस्ट कर दो, यहाँ पे, ठीक है। अब इस बटन को दबाओगे तो ये उस पेज पे चला जाएगा जो आपने क्रिएट किया होगा। इसी तरह मल्टीपल पेजेस के लिए करो। सो इस तरह से करके आप मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हो, योर वेबसाइट विल बी फुली रिस्पॉन्सिव। प्लीज शेयर योर फाइवर के यूआरएल्स एंड अपवर्क प्रोफाइल गिग्स विल
assess everything, and then we'll conclude the session.